Good morning, students. Today we are going to continue with the chapter Microorganism, Friends or Foes. Students, we already deal with different kind of disease, or you can say communicable disease in case of human being. In today's lecture, we are going to discuss the different type of disease in plants and different type of animals. We are also going to introduce here the concept of food poisoning. What is food poisoning? What is the reason behind it? And in last, we are going to deal with the methods of the food preservation. So today's learning's objectives are, at the end of the lecture, the students are able to classify the disease in case of animals and plants on the basis of their causative agents. The second learning objective is students are able to enlist the symptoms of various type of disease in case of plants. So let's start with the video. Thank you. When we keep the leftover food on the table for the entire night? When we see the container in the morning, we find that it is shared by some new members. Yes, along with the food, we even find fungus growing in the container. So what do we do in such cases? Needless to say, we throw it away. This is because if we consume the food shared by fungus, then we may encounter a variety of health issues. This happens because the food has now turned into a poison for us. Wait a second, how can the delicious food of the previous night turn poisonous this morning? That too only with the mere presence of fungi? The fact that fungi grow over it is enough to explain this. Yes, when microbes of any type take over our food, they release certain substances in it. And these substances are quite toxic for us. And hence we say that the food has turned poisonous. This gets us to the concept of food poisoning. In the simplest words, we can define food poisoning as the ill effect on health caused by consumption of contaminated food. And how does the food get contaminated? It gets contaminated due to toxic secretions by certain bacteria, fungi, parasites, and any other type of pathogen present in it. Consumption of such contaminated food leads to various types of severe infections in our digestive system. So, is there something we can do to avoid poisoning of our food? Scientifically, spoiled food is a result of chemical reactions. Yes, the harmful microbes in our food give out certain secretions that bring out chemical changes in the food. These chemical changes render it unfit for consumption. So can we save our food from spoiling by interrupting these chemical reactions? Of course we can. And the only way to do this is by inhibiting the microbial growth or simply killing these microbes. Either ways, we do not allow the toxic secretions to enter our food. But how can this be achieved? Well, there are several ways of carrying out food preservation. A few methods have been carried out since ages, while some have been recently developed. Let's have a glance at the chemical methods of food preservation first. We always find our grandma adding lots of salt and oil to the pickle she makes every year. And the pickle, if you notice, tastes the same throughout the year. Have you ever wondered how this happens? Well, this is an ancient method of food preservation that we use. Adding commodities like salt, oil, and even vinegar arrest the growth of microbes in the food. Even if microbes attack our food, they get killed. Among all, salt is the most commonly and widely used. Not only pickles, but salt is also used for preservation of meat and fishes. Yes, salting of meat and fish, followed by drying them in the sun, can preserve them for many months together. Do you know any such commodity that we use daily which acts as a preservative? You must have observed that jams and jellies are added with wholesome amount of sugar. Yes, it is because sugar is also used as a preservative. Apart from making the jams and jellies sweet, sugar also inhibits microbial growth in it. Well, these were the commonly used commodities which were employed to preserve food in our homes or even on a small scale. But what about the food items manufactured or processed on a large scale?
Some food items cannot be added with large amount of oil or salt. In such cases, a few chemicals come to our rescue. Yes. Now, apart from salting, oiling or adding sugar, we have certain chemicals that can be added to the food in order to preserve it. The most commonly used chemicals include sodium benzoate and sodium metabisulfite. These chemicals prevent the growth of microbes in our food. And what kinds of food items can be saved by these chemicals? We can add them to squashes, fruit juices, and even certain fruit jams. Now, these were the methods where the food items were added with some preservatives. But what about those consumables which cannot be added with any such preservatives? Wait a second. We can add preservatives to almost all food items. Then which consumables are we referring to? Well, have you ever thought of adding salt or oil to milk for preservation? How will you add sugar or vinegar to fruits and vegetables? These consumables cannot be preserved with any chemical treatment. For them, we need well-designed physical methods for preservation. To know these methods, you will have to watch our next video. So, dear students, first of all, we are going to classify here the different type of animal disease. So, in this particular table, you are able to see the name of the disease, microorganism that cause the disease, and the animals infected. The first is anthrax. So, anthrax is the very common disease which is found in case of cattle, and it is caused by the bacteria. The second is called the tuberculosis. Tuberculosis simply called TB. T बी फॉर बॉल वाला बी है, वी दूसरा बी नहीं होता, बी फॉर बॉल वाला है. टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है. ये जनरली आपके लंग्स को इफेक्ट करती है और ये आपके पोल्ट्री बर्ड्स मीन जितने भी आपके पोल्ट्री फार्म्स होते हैं या कैटल्स, जितने भी आपके डोमेस्टिक कैटल्स हैं उनके अंदर कॉमनली देखी जाती है. द थर्ड वन इज़ फुट एंड माउथ डिजीज़. फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है इट इज़ कॉज बाय द वायरसेस और ये भी आपकी कैटल्स के अंदर देखी जाती है. इसमें what is going to be happen, there are so many ulcers which are found in their foot and mouth, and simply the cattle are not feeling well. The fourth one is called the rabies. rabies का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी होता है. बट इज हाइड्रोफोबिया मीन उनको पानी से डर लगता है. हाइड्रो मीन वाटर, फोबिया मीन डरना. तो दैट वाई रेबीज़ का द नेम ऑफ द रेबीज़ इज़ हाइड्रोफोबिया. वायरल डिजीज़ है, डॉग्स और मंकीज़ में ये कॉमनली देखी जाती है. ठीक है. आगे है आपकी कैनाइन डिस्टेम्पर. नाम से ही पता लग रहा है वायरल डिजीज़ है. ठीक है. डॉग्स के अंदर कॉमनली देखी जाता है. यानी इस केस में भी डॉग इज़ जस्ट बिहेव लाइक ए रेबिड डॉग. जैसे आपका रेबीज़ वाला डॉग होता है वैसे ही है, बट एक्चुअली देर आर सम इन्फेक्शन इन देयर कैनाइन्स. कैनाइन्स आर द टाइप ऑफ टीथ. रिंगवर्म कॉमन डिजीज़ है, फंगल है, कैटल और पोल्ट्री बर्ड्स में देखी जाती है. एंड द लास्ट वन इज़ एस्पेरिजिलस. एस्पेरिजिलस एक फंगस का नाम है. तो फंगल डिजीज़ है पोल्ट्री बर्ड्स में. कई बार आप पोल्ट्री फार्म विजिट किया होगा तो आपने कई ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स देखे होंगे विच डोंट हैव देयर ओन विंग्स, या उनके जो आपके पंख होते हैं वो झड़ गए होते हैं. ठीक है. तो दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ एंड द नेम ऑफ द डिजीज़ इज कॉल्ड एस्पेरिजिलस. नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द प्लांट डिजीज़. एक्चुअली इन केस ऑफ प्लांट्स देर आर, देखो बहुत सिंपल है. एनिमल्स के अंदर सिम्टम्स को विजुअलाइज करना इजी हो जाता है, बट प्लांट्स आल्सो हैव सम काइंड ऑफ डिजीज़. तो उनके सिम्टम्स को विजुअलाइज करने के लिए सिंपल है, अगर किसी प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, इसका मतलब दैट प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़. या प्लांट्स की जो फ्रूट्स हैं उनमें स्पॉट्स आ गए हैं, उनकी सोकी मार्जिन मीन उनमें छेद पड़ गए हैं, उनमें से पानी बाहर आ रहा है. ठीक है. इट मीन दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़. सो यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज़ वायरल डिजीज़ है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV. तो ये वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस. नेचुरली बात है, ये आपके टोबैको प्लांट को जनरली इफेक्ट करता है. और देखो इसके सिम्टम्स क्या हैं. टोबैको प्लांट के अंदर अनइवन स्पॉट्स आ जाते हैं, येलो कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, और उसके पत्तों का जो कलर है जनरली आपका ग्रीन होता है. तो समबट दे बिकम डिसकलरेशन, का मतलब उनका जो कलर है दैट इज स्लाइटली बिकम येलोइश ब्राउन. द सेकेंड इज़ बैक्टीरियल डिजीज़, सिट्रस कैंकर. नाम से ही पता लग रहा है आपका सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी आपके जैसे आपका लेमन है, ऑरेंज है, ये सारे आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं. तो उनमें देखो लीजन मीन, ठीक है, लाइंस आ जाती हैं पत्तों के ऊपर. स्टेम एंड फ्रूट्स जो होते हैं उनमें से ब्राउन वाटर, मैंने बता दिया आपको, ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं. और सोकी मार्जिन मीन उनमें से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है.
फंगल डिजीज है रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। जंग आपने देखा होगा किसी आयरन आर्टिकल मीन लोहे की कोई चीज़ हो तो उसमें ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि व्हीट के जो पत्ते हैं उनमें ऑरेंज कलर के पैचेस आ जाते हैं आपके, तो दैट इज़ द सिम्टम। स्मट ऑफ राइस, स्मट का मतलब होता है समबट ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके सिंपली राइस के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो हैं वो ब्राउन यानी स्मट कलर के मीन ग्रीनिश ब्लैक कलर के उसमें स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके। रेड रॉट ऑफ शुगर केन गन्ने के अंदर देखी जाती है आपके, इसमें रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं आपके। और इनके जो नोड्स इंटर नोड्स का डिस्टेंस है वो प्रॉपरली नहीं रह पाता। द फंगस लास्ट इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आपकी फंगल डिजीज़ है। इसमें वाटरी लेट ब्लाइट एक्चुअली क्या है आपकी बुक में एक रेफरेंस दिया है कि इरिश फेमीन 1740-41, तो उसमें लेट ब्लाइट एक बीमारी हुई थी, ठीक है, और उससे टोटल पोटैटो की जो क्रॉप है वो डिस्ट्रक्ट हो गई थी। तो इसमें वाटरी रॉट ऑफ लीव्स, ठीक है, जब पत्ते जो होते हैं वो सड़ जाते हैं उनमें से पानी आना स्टार्ट हो जाता है और ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं उनके पत्तों के ऊपर। तो दीज आर द सर्टेन डिजीज इन केस ऑफ प्लांट्स। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द फूड पॉइजनिंग। ठीक है, आपने नॉर्मली सुना होगा कि क्या हो गया था, पेट में दर्द हुई, डॉक्टर के पास गए, वॉमिटिंग हो रही थी तो डॉक्टर ने बोला फूड पॉइजनिंग हो गया। तो होती क्या है फूड पॉइजनिंग, जब कोई पर्सन द डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, और कंटामिनेटेड फूड मीन जो खाना ख़राब हो चुका है, ठीक है, और खाना कब ख़राब होता है, जब हम खाने को अच्छे से प्रॉपरली तरीके से हैंडल नहीं करते। व्हेन द मिस हैंडलिंग ऑफ फूड इज़ देयर, तो 100% श्योर द फूड पॉइजनिंग इज़ गोइंग टू बी देयर। और ये कॉमनली आपने देखा होगा जैसे आजकल का मई जून, ये अप टू यानी यू कैन से अक्टूबर नवंबर, यहाँ पे क्या होता है कि खाने के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आना स्टार्ट होते हैं, नौजिया, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, एब्डोमिनल रीजन में दर्द होती है, डायरिया, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा सीवियर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो उस टाइम जो होते हैं आपके अनकॉन्शियसनेस, बेहोश भी हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू द डैमेज ऑफ द योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी अपनी कॉन्शियस को हम भूल सकते हैं, और इवन दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो लिखा है अपना वीकनेस हो जाती है, फैटीग है, डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया और फंगस ये आपके फूड पॉइजनिंग होता है। बैक्टीरिया में याद रखिएगा देयर आर टू बैक्टीरियम, द फर्स्ट इज कॉल्ड द क्लोस्ट्रीडियम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द स्टेफाइलोकोकस। तो ये आपके दो बैक्टीरिया हैं, अगर इनका अमाउंट खाने के अंदर बहुत ज़्यादा बन जाए तो उसकी वजह से आपकी यानी यू कैन से फूड पॉइजनिंग अक्कर होती है। और फंगल फूड पॉइजनिंग में देर इज़ ए वन फंगस एंड द नेम ऑफ द फंगस इज कॉल्ड एस्पेरिजेलस। ठीक है, तो बहुत बार आप पूछा जा सकता है कि नेम वन बैक्टीरिया वन फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे आपने स्पेलिंग्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, गलत स्पेलिंग्स नहीं आपने लिखनी। ठीक है, द बैक्टीरिया द क्लॉस्ट्रीडियम एंड द स्टेफाइलोकोकस एंड द फंगस इज एस्पेरिजेलस। ठीक है, तो मिस हैंडलिंग ऑफ फूड क्या है, जैसे अब देखो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि हम फूड पॉइजनिंग से बचें कैसे। तो फूड पॉइजनिंग से अगर आपने बचना है तो नेचुरली बात है मिस हैंडलिंग ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, कैसे, ठीक है, वी हैव टू वॉश अवर हैंड बिफोर कुकिंग और ईटिंग ऑफ फूड। ठीक है, हमारे जितने भी वेजिटेबल्स है वी हैव टू वॉश देम प्रॉपरली बिफोर कुकिंग और ईटिंग। ठीक है, द थर्ड वन इज, ठीक है, व्हेन द फूड इज लेफ्ट, ठीक है, आफ्टर ईटिंग दैट हैज़ टू बी रेफ्रिजरेटेड। ओके, तो उसको खाने को हमने रेफ्रिजरेशन करनी है, उसको खुले में नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड शुड बी प्रॉपर इन द लार्ज पार्टीज़। लार्ज पार्टीज़ में क्या होता है किसी के हाथ कैसे होते हैं, तो नेचुरली बात है वहाँ पे मिस हैंडलिंग ऑफ फूड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे ये आपका मेनली आ गया आपका। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स यू कैन एनलिस्ट, ठीक है, कि वी कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। आगे है लास्ट फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन देयर स्पॉइलेज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम खाने को इस तरह से ट्रीट करेंगे या हैंडल करेंगे जिससे खाने की स्पॉइलेज ना हो या उसकी स्पॉइलेज को हम काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए रोक सके। देखो क्या है, इट डजेंट मीन कि मैंने खाना जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखा और मैं उसको 10 दिन बाद खा लूँ, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, विद इन 1 or 2 days वी हैव टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर फूड, बिकॉज इफ वी आर ट्राई टू ईट दैट पर्टिकुलर फूड आफ्टर 5 to 7 days, तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, वो खाना जो होता है वो ख़राब हो चुका होता है।
तो याद रखिएगा कि कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम स्टॉप करना तो बहुत मुश्किल है, बट हमारी मेन फोकस घरों में रहता है कि हम उसकी जो यू कैन से जो ग्रोथ है बैक्टीरिया या फंगस की, उसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक क्या कर सकें, रोक सकें। ओके, तो इसमें क्या है आपका, प्रिवेंशन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल रिटार्डिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स दैट कॉज द रेंसिडिटी। अब ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है, बरसात के दिनों में मैक्सिमम एग्जांपल मैं ऑक्सीडेशन का देता हूँ आपको यहाँ पे, कि बरसात के दिनों में आप चिप्स का पैकेट लाए, आपने उसको ओपन किया, ओके, तो खाया, तो उस टाइम वो क्रंची होते हैं। अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे तो व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है, वो रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड मीन वो खाएंगे तो वो क्रंची नहीं रह पाते, उनका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है आपका। तो होता क्या है कि जब भी कोई ऑयली फूड पार्टिकल या ऐसा फूड पार्टिकल जिसमें फैट्स हों, घी वगैरह हो, ऑयल वगैरह हो, तो अगर वो किसके, एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे, तो एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ वो ऑयली फूड पार्टिकल रिएक्ट करके उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उनका टेस्ट, उनका कलर और उसकी स्मेल वो चेंज हो जाती है, एंड द प्रॉब्लम इज बेसिकली कॉल्ड रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, तो हैविंग डिसएग्रीगेबल ओडोर, ओडोर का मतलब क्या होता है, स्मेल, टेस्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑयल और फैट। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जब वो डिकम्पोज होंगे, और यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स आल्सो। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल है, कौन कौन से मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के। पहला मेथड है ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है आपका, ड्राइंग का देखो फीचर क्या है, इसमें रिड्यूस हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ को काफ़ी लंबे टाइम तक हम रोक सकें, ठीक है। तो उसके अदर फीचर्स क्या हैं, देखो ड्राइंग मीन, जैसे आजकल आपने देखा होगा, अभी अभी रिसेंटली हमने किसकी हार्वेस्टिंग की है, व्हीट की। तो जो न्यूली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं दैट हैविंग ए हाई अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप क्या करते हैं, आफ्टर थ्रेशिंग, जब हम घरों में उनको स्टोरेज से पहले हम क्या करते हैं, उनको धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सुखाने से क्या होगा, उनके अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है। वाटर कंटेंट जितना कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जितनी कम होगी, नेचुरली बात है, उनको काफ़ी लंबे टाइम तक हम प्रिजर्व रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स कौन हैं, फ्रूट, सीरियल्स एंड ग्रेन। यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, देखो हम किसी भी चीज़ में अगर सॉल्ट, या देखो आप जैम्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, शुगर डाली होती है। पिकल्स की बात करें तो उनमें हम सॉल्ट डाल देते हैं। या हमारी मीट शॉप्स होती हैं, तो मीट शॉप वाले क्या करते हैं, जैसे उसको काट के उसके ऊपर नमक का सोल्यूशन लगा देते हैं। होता है, नमक का सोल्यूशन लगाएंगे तो क्या होगा, वाटर जो होता है वो बाहर आ जाता है, और वाटर जब बाहर आएगा तो दैट पर्टिकुलर मीट शुड बी रिमेन प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका फीचर क्या है, रिड्यूसेस वाटर कंटेंट एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब। मीट, फिश, जैम्स, पिकल्स एंड जेलीज, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। एसिटिक एसिड, विनेगर की अगर हम बात करें तो पिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है। इसके अलावा देर आर टू अनदर एसिड, सिट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितने भी आप पेप्सी, कोक, ये सारी चीज़ें पीते हैं, तो उसमें सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फॉर एग्जांपल आप वो पीते हैं, जैसे आपने, यानी यू कैन से मिनट मेड, जैसे ऑरेंज का होता है, या ऑरेंज, या जैसे आपने लेमनेड पिया, लेमनेड मीन नींबू का रस पिया, तो अल्टीमेटली जो आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड डाले जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। केमिकल प्रिजर्वेटिव में देखो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज कॉल्ड द सोडियम बेंजोएट एंड द सेकेंड इज कॉल्ड KMS। KMS स्टैंड फॉर पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइड। ये आपके दो ऐसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और ये जैम, जेलीज और पिकल्स में यूज़ किए जाते हैं। अगला मेथड है आपका हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो बॉइलिंग, जैसे मिल्क को हम बॉयल करते हैं तो दैट इज़ द हॉट ट्रीटमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट मीन जितने भी आपके कई ऐसे फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे फ्रोज़न वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रोजन आजकल क्या मीट आ गया है आपका, तो उनको कोल्ड ट्रीटमेंट में रखा जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोका जा सके। वाटर, मिल्क, कुक्ड फूड आपका आ गया। पास्चराइजेशन, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग बच्चे, जितने भी हम दूध यूज़ करते हैं पैकेट वाले, वेरका का हो गया, अमूल का हो गया, सारी चीज़ें, वो पास्चराइजेशन मीन लुइस पास्चर का ये बेस के ऊपर कॉन्सेप्ट है आपका, एंड दैट इज़ कॉल्ड द पास्चराइजेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले मिल्क वगैरह जो होता है उसको बॉयल किया जाता है, ठीक है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तक, 70, 80, 90 डिग्री सेल्सियस तक उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद उसको फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। यानी पहले हमने उसको हॉट ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट दिया, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया।
हॉट ट्रीटमेंट का कई ऐसे माइक्रोनिज्म होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं, बट कई ऐसे होंगे जो हाई टेम्परेचर पे नहीं मरते। तो कोल्ड ट्रीटमेंट देख करके उसकी ग्रोथ को हमने क्या कर दिया, रोक दिया, और बाद में उसी मिल्क को हम पैकेट्स में सील करके उसको डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए हम यूज़ किया जा सकते हैं। यानी यू कैन से कि जितने भी आपके पैकेट वाले दूध होते हैं उनको घर में दोबारा से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली पी सकते हैं आपके, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पास्चराइज्ड। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा आपका, हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट करने से उनके जो इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम्स क्या होते हैं, यानी इंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट जो स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन कर देते हैं। तो नेचुरल बात है, अगर कोई मिल्क ख़राब होता है तो उसके जो इंजाइम्स हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, तो हमने उनके इंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक दिया, एंड दैट मिल्क और बटर इज रिमेन प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड द कंसेप्ट इज कॉल्ड द पास्चराइजेशन। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड वैक्यूम पैकिंग। अगर मैं वैक्यूम पैकिंग की बात करूं तो इसमें एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर आपका जो है खाना जो होता है, सबसे पहले मैंने माना कोई कंटेनर है जिसमें मैंने फूड को पैक करना है, सबसे पहले मैं उस कंटेनर को अच्छे तरीके से वॉश करूँगा, स्टेरलाइज करूँगा, उसे धूप में सुखाऊंगा, उसके बाद उसमें खाने को पैक करके ऊपर से उसे सील कर दूंगा, वैक्यूम पैकिंग कर दूंगा ताकि उसके अंदर एयर एंटर ना कर सके। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे कैंड फूड होते हैं आपके जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और जिनको हम कंज्यूम, जैसे हल्दीराम के रसगुल्ले की बात कर लो आप, है ना, तो हल्दीराम के जो रसगुल्ले हैं वो नेचुरली बात है वो कैंड हैं, हम उनको घरों में कितने दिनों बाद, 4 महीने बाद भी यूज़ करने हैं आपके। ठीक है, तो ये है आपका, बट याद रखिएगा जो कैंड फूड हैं, एक बार अगर आप उनको आपने ओपन कर दिया तो उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक 3 to 4 days 5 days तक उसको खाना जो होता है वो कंपलसरी होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताऊँ कि अगर आप कैन फूड ले रहे हो और मार्केट में ऐसी कैनिंग आपको मिली जो पफ्ड हो, पफ्ड मीन कैन, जो आपका कैन है, कंटेनर है जिसमें खाना पैक है, वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है या पिचका हुआ है, ठीक है, तो उसकी शेप जो है वो आउट ऑफ शेप है, मीन वो प्रॉपर शेप नहीं है, तो ऐसा खाना हमने नहीं, ऐसे कैन फूड को हमने नहीं लेना। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, इट मीन्स ये शो करता है कि जो कैंड फूड है उसमें से जो आपके फूड पार्टिकल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनकी रेंसिडिटी या उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है और वो खाना जो है वो अच्छा नहीं है, तो याद रखिएगा। तो ठीक है, वैक्यूम पैकिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कई बार वैक्यूम पैकिंग में जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं, है ना, कैनिंग मैंने आपको बताया चिप्स के पैक हैं आपके, तो उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन वगैरह भरी जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो आपके जितने भी आपके अंदर चिप्स वगैरह होते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने नहीं देते, and that will remain preserved for the longer period of time. Then last one is called the refrigeration. लो टेम्परेचर पे हम फूड को हम रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेशन में मैंने फॉर एग्जांपल आपने शाम को दाल बनाई, बच गई, आपने उस दाल को सुबह निकाला, दोबारा से पूरी दाल को निकाल दिया जो बच गई थी, दोबारा गर्म किया, खा लिया, थोड़ी सी बच गई दोबारा रख दिया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थाइंग। यानी अगर हम खाने को बार बार फ्रिज से बाहर निकालेंगे, बार बार उसे गर्म करेंगे, बार बार दोबारा फ्रिज में रख देंगे, तो ऐसे में वो खाना जो होता है वो खाने के, यानी दैट इज़ रिमेन, यानी यू कैन से दैट इज़ नॉट फिट फॉर ईटिंग, उसको हम नहीं खा सकते। तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेशन में हमें एक लिमिटेड पीरियड टाइम तक ही उस खाने को हमने कंज्यूम करना है। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, आई एम आल्सो गोइंग टू शेयर द नोट्स आल्सो, सो प्लीज़ डू ऑल द थिंग्स ऑन योर कॉपीज, ठीक है, एंड व्हेन द स्कूल विल रीओपन वी आर आल्सो अगेन रीफॉलो और यू कैन से revise all the chapters again with proper reading and everything, so don't worry, ठीक है, try at your own best. Thank you and have a nice day.